4 साल की इंजीनियरिंग होती है, तो या तो आपने 4 साल मेहनत करी तो जिंदगी भर आराम करोगे, और अगर इन 4 साल में तुमने आराम किया तो जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स। आपकी जो दुनिया होती है काफी लिमिटेड होती है, बट स्टिल आप काफी खुश रहते हैं। तो आपको टाइम नहीं लगेगा लोगों को पहचानने में, और बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि उसे क्या करना है। जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाए तो फिर जिंदगी की क्या है। यू कैन नॉट लीव योर चिल्ड्रन आउट इन द ओपन मार्केट। So, hi guys, and hello and welcome back to yet another episode of MN Mujahid Show, where the real heroes of our society will share their life experience to inspire someone. And as you know, today we have a really very special guest with us, Mr. Tata Sai sir. So, you are welcome to my show, sir. Thank you very much. And you know, as you know that in this podcast with Will Kulkarni, we are going to discuss about your life. My first question for you is like, if you look back in your life, what would you say in one word? If it would have to be only one single word, then it's going to be entertaining, Okay. and full of surprises. So that's right. So like, you know, as per your life experience, what motivates you to keep going in life? Like, there are so many incidents will be happening now, like, but what always, you know, keep you motivated to go for, you know, wake up in the morning and go for another day of work, or, you know, to face any of the challenge or any. So what motivates you to keep going in life? You see, I was born and raised in a lower middle class family, then because of my father's perseverance and commitments towards life and his family, we then moved a little on the higher side, which is middle class family. And I have seen the troubles, and yes, there have been few instances wherein we have seen the struggle in our life. And yes, my father raised us very well. And in my family, I have my parents, mother and father. I have one sister and brother-in-law. And I'm married to a very beautiful girl, and she's my wife. And we have a lovely princess. We have a daughter, she's 7 years old now. So the thing is that every morning when I wake up, the only thing that comes to my mind is the happiness that I want to see on my family's face, and what my father did and what my mother did that when we were kids. Yes. Probably they had the same thing in their mind as well. All they want us to be happy. The same thing probably you can call it as a genetic thing. Yes. So yes, I mean the only thing that motivates me at this point of time is my family, which is my wife and my daughter, as well as my parents and my family towards my sisters. Yeah. So like, you came from a middle class background family. Yes. So if you want to share something about your like a family, like how from where exactly you know what you want. I was born and raised in a central part of India, which is Chhattisgarh. Previously it was Madhya Pradesh. Okay. Now it is Chhattisgarh, and there's a town called Bhilai, Okay. which is quite famous for its steel manufacturing industry through Steel Authority of India Limited. And we have seen the transition from, you can say, the zero, which is Generation X. We belong to Generation X. Then it goes to Gen Y and Gen Z. Yes. So we have seen that phase of life from that small town itself. But later, I did my graduation in the same town. I did my engineering in electrical from the same town. And then I started moving out from my state Chhattisgarh, and I have traveled almost across all the states in India for work or for pleasure, whatever you can call it. National and international both experience you have. Yes, from work experience point of view, I started working since 2007, and the first time I left India was 2014 when I was called to work
for a company in Malaysia. So I worked in Malaysia for a good 1.5 year. Then I moved to Abu Dhabi in 2015. So it's been like the 9th year successfully run Here in UAE. here in UAE. So, like, as per your life experience, like, how do you define success? Because, you have seen all these, parameters, like you travel all over the world, India, national and international experience, both you have, and, the family background which you came, and the social life which you are having as of now. So, how do you define, like, success? Like, what is the meaning of success according to you? Well, I have to be very honest with you. If I have to define success, and if the only target and the only goal that I have in my life is to be happy. Success for me, it's happiness. 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 I mean, people say that money can't buy happiness, Yeah. but in practical world, yes, we do need money and all. Yeah. And people try to define success with your bank account Yeah. and balance in your bank account. Yeah. In my case, which it is not, I don't completely disagree with what they say, but I don't completely agree as well. And success I have been through a transition of life back in 2008. There something happened in my life which changed me, and I moved back to my master's degree. I mean, I started doing my master's just to get rid of that phase of my life. And post that, with the grace of Almighty and with the support of my family, yes, today if I am sitting with you and sharing my experience, it's all because of that. Because of your family. Yes. So, and at the end of the day, as you said, to answer your question, what is success for you? Success is happiness for me. So, like, if you go back your childhood memory, so, like, like what kind of a student you are, how your childhood memory, like, if you recall it. I have been an average student throughout my academics, and वो होता है कि हर बच्चा जैसे ट्रांजिशन आता है, जैसे ग्रोथ होगी हर बच्चे की, वैसे ही रहे हैं। छोटे से शहर से आए हम, तो उस छोटे से शहर में आपकी जो दुनिया होती है काफी लिमिटेड होती है, बट स्टिल आप काफी खुश रहते हैं। तो एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ, मैं एवरेज स्टूडेंट था। आई लव स्पोर्ट्स, तो मैंने बास्केटबॉल खेला है, एंड आई यूज्ड टू प्ले बॉल बैडमिंटन। आई डोंट नो वेदर पीपल नो अबाउट दिस स्पोर्ट एनीमोर और नॉट, बट बॉल बैडमिंटन मैंने खेला है। एंड यस, आई मीन आई वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बास्केटबॉल। So, स्पोर्ट्स में भी आपका इंटरेस्ट था? जी, आई हैव बीन एन एथलीट ड्यूरिंग माय एकेडमिक्स। Great. So, like, अगर मैं पर्सनली अपने साइड से क्वेश्चन को सुन के, मतलब what is the importance of sports in today's, in every person's life, sports in life, what we can learn from sports. See, I mean, what it will bring to our life. See, everything, I mean, the best thing that sports teaches you is the leadership quality and working with the team. Yes. Okay? Yeah. As if you will see few sports like lawn tennis, nothing offensive about a particular sport. Yeah. But when you have a group of people playing some sports, then you learn how to gel up with new people and how to understand new people, and उनके वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या जरूरतें हो सकती हैं। तो it brings an emotional quotient. It builds an emotional quotient inside you, ताकि इन फ्यूचर ये सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं। अगर आप एक बहुत बड़े मार्केट में चले जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है, तो आपको टाइम नहीं लगेगा लोगों को पहचानने में और लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, when the emotional quotient is already inside you। आप लोगों के साथ मिलेंगे तो आपके जो स्टेज फियर होता है और आपका जो इंट्रोवर्ट नेचर होता है वो सब खत्म हो जाता है। You try to become more extrovert. See, the only thing is that sports make you independent first of all, okay? And if certain sport is calling you back again and again, as in आप सोच के उठे आज मुझे ये खेलने का मन है, और अगर एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स अगर आपको अपनी तरफ खींचता है, that means, as you rightly said, it makes a discipline in your life. Yes. So, like, as per your life experience, like, there are so many people came in your life, right? You work national and international. So, there are so many people who will give you advice, right?
So, what is the best advice that you received like from maybe your family or like, from friends circle or how? Like, what is the best advice you received ever in your life, which you implemented and then you got the result in your life? जी, I mean, जब आप बचपन से आप देखते हैं आपके साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, यानी शुरुआत में आपके माँ बाप आपको एडवाइस देते हैं कि ये सही है, ये गलत है। वो आपको गाइडेंस देते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं हर एक चीजों में। बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज यू हु टेक्स द डिसीजन एंड यू टेक द कॉल। फिर अभी जैसे अगर हम एक सिंपल ट्रांजिशन की बात करें तो यानी वी गो बैक 2000s, आई मीन late 90s and early 2000s. तो उसमें my father guided me through what I'm supposed to study and what will help me in the future. I mean, उस समय में बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि उसे क्या करना है, यानी 10th तक के वो आ जाता है जैसे जैसे पढ़ाई करके आ जाए। फिर 10th के बाद क्या करना, बिकॉज 10th इज योर फर्स्ट माइलस्टोन। 10th के बाद आपने जो फील्ड चूज करनी है, आपको साइंस जाना साइंस जाए, कॉमर्स जाना कॉमर्स जाए, आप वैसा चूज कर सकते हैं। तो उस समय हमारे पास करियर काउंसलिंग नहीं होती थी, हमारे पास एकेडमिक काउंसलिंग नहीं होती। सो आवर पेरेंट्स वर आवर काउंसलर्स बिकॉज दे न्यू व्हाट इज गुड फॉर अस। तो देन माय फादर गाइडेड मी यू टू गो टुवर्ड्स साइंस, एंड दैट्स हाउ द साइंस हैपेंड एंड दैट्स हाउ द इंजीनियरिंग हैपेंड। देन माय फादर सेड ओके यार इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो इंजीनियरिंग करने दो। देन आई मेट वन पर्सन इन माय लाइफ दैट टाइम, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज होती है जो बहुत यानी बोलते हैं यानी उसका एक टैग बना दिया कि कोई बहुत टफ होता है लाइफ में। तो जिंदगी में हर चीज आसानी से मिल जाती है, जिंदगी की क्या है मतलब। तो उस समय एक इंसान से मुलाकात हुई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज बोली थी, एक इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड और इंजीनियरिंग एक ऐसा सेक्टर है कि 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, तो या तो आपने 4 साल मेहनत करी तो जिंदगी भर आराम करोगे, और अगर इन 4 साल में तुमने आराम किया तो जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा, तो चॉइस इज योर्स। तो उन्होंने एक पीस ऑफ एडवाइस उस टाइम पे दी थी। दैट वाज बैक इन 2001 I should say, because I started my engineering in 2002. I started my engineering in 2002. Then उसके बाद there was a प्लान्स यानी एकेडमिक्स में 2006 मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई, 2007 से मैंने काम करना चालू किया। एंड 2008 में कुछ इंसिडेंट्स हुए, एंड फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर गया, एंड आई स्टिल कंटिन्यूड वर्किंग, बट देयर वाज समथिंग मिसिंग इन माय लाइफ कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ मिस हो रहा है। तो that time you are working or like that? Yes, I was working. I was still working. तो अब क्या होता है कि इंसान कभी भी अपने करियर में शुरुआत करता है तो वो चाहता है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस के बेस पे मुझे और सक्सेस और मुझे करियर एडवांसमेंट मिले। बट एट दैट टाइम वो चीज हो नहीं रही थी, सो देयर वाज समथिंग मिसिंग। सो इन 2008 और 9 का एक मेरे पास अच्छा एक साल था व्हेन एक्चुअली आई फोकस्ड ऑन माय सेल्फ, एंड उसके बाद हमारा जब आया मूवमेंट आया, आई स्टार्टेड माय मास्टर्स। तो किसी ने एक बात उस टाइम में मुझे ये बात बोली थी, क्योंकि मास्टर्स में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं कि आप या तो एमबीए कर लो, मार्केटिंग में कर लो, फाइनेंस में कर लो, और अदर थिंग्स एज वेल। बट समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन एट दैट टाइम, अगर तुम्हें मार्केटिंग में या फाइनेंस में ही जाना है, देन व्हाई यू डिड द इंजीनियरिंग पार्ट? So, I mean, nothing offensive again. All academics are good. All the master degrees are good. तो तब मुझे एक सजेशन दिया गया था कि you should go for this particular course. So मैंने प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट किया, which is from National Institute of Construction Management and Research पुणे। वहां से मैंने 2 साल की अपनी मास्टर्स की डिग्री की थी। तब उसके बाद से I never looked back, because एक टाइम की बात है, it was in 2010। 2010 में हम लोग चाय पी रहे थे, मास्टर्स कर रहा था मैं उस टाइम पे, तो हम लोग इन पुणे, तो हमारे कॉलेज के जस्ट बाहर में छोटे से चाय की दुकान हुआ करती थी। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो वहाँ पे एक मेरे बहुत अच्छे क्लासमेट है, दोस्त हैं, तो उन्होंने एक चीज बोली थी कि आप 2 साल यहाँ से पढ़ के अगर बाहर निकले तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू।
क्योंकि हमें उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं होता था कि ये इंस्टीट्यूट क्या, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, एंड आपको आगे चल के कहाँ पे जाना है और आप क्या करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। तब उन्होंने ये चीज बोली थी कि आप यहाँ पे 2 साल का कोर्स कर लो, उसके बाद बाहर चले जाओ, देन स्काई इज द लिमिट। एंड यस, स्काई इज द लिमिट, एंड दैट वाज द बेस्ट फ्रेज आई हर्ड फ्रॉम हिम। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उन्हें, और पर्सनली मैसेज कर दूंगा बाद में। तो दैट्स इन 2011, फिर जब मैंने अपनी मास्टर्स खत्म की एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन, तो मैं वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जाके काम करता था। इट्स बीन मेरा पूरा थ्रू आउट माय लाइफ एक्सपीरियंस इज इनटू ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस बहुत छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स के उसमें रहता था, बट व्हेन आई फिनिश माय मास्टर्स, उसके बाद मैं जब चालू किया, आई स्टार्टेड लुकिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिगर फेज। तो फिर मैं उसके वो अपने काम के चलते मैं हैव वर्कड इन ऑलमोस्ट ईस्ट कोस्ट एज वेल एज वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ऑयल एंड गैस आर देयर ओनली। आई मीन, यू डोंट हैव एनी अदर फील्ड वेयर you can extract oil and do the oil and gas projects. So like what I can understand, मतलब आपके एडवाइस लाइफ में जो आपके फादर से जो आपको गाइड किया थ्रू आउट दैट, लाइक जो जर्नी थी जब आप मतलब व्हाइल यू आर स्टडीइंग है। बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब शायद वो मतलब एडवाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि मतलब नेक्स्ट क्या करना है, या फिर तो ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस देते हो? लाइक क्योंकि सबकी लाइफ में मतलब उतने वेल एजुकेटेड एग्जाम्पल उनके पेरेंट्स नहीं है जो उनको गाइड कर सकें, बट जो मतलब बच्चे को अगर पढ़ना है तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगा कि आगे मतलब क्या क्या? देखिए, पहली चीज तो ये है कि आजकल की हम अगर आज की जनरेशन देखें या आजकल के बच्चों को देखें, आई मीन दे आर वेरी एडवांस्ड। आई मीन हम इतना एडवांस नहीं थे जब हमारी लाइफ उस टाइम पे, जब हम लोग इनकी उम्र के थे, हम वी वर नॉट दैट एडवांस्ड द वे दे स्टूडेंट्स आर। You can call it technology, you can call it generation, and yes, बहुत बड़ा गैप है Gen X and Gen Z में। तो करियर काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा ये चीज सजेस्ट करूंगा कि इफ यू हैव सम इंटरेस्ट, यू टॉक टू योर पेरेंट्स, ठीक है, बिकॉज दे आर द वन हु विल बी स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऑन यू देयर हार्ड अर्न्ड मनी, कि आपको करना क्या है लाइफ में, क्या करना है। तो आप उसके हिसाब से आप अपने पेरेंट्स से बात करें। डेफिनेटली सम पेरेंट्स विल डेफिनेटली गाइड, इफ दे कांट देन डेफिनेटली दे विल फाइंड समवन हु कैन एडवाइस कि आपको क्या करना चाहिए। देखो, क्योंकि करियर काउंसलिंग एक ऐसी चीज होती है विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आपने किसी को अगर गलत गाइड कर दिया, देन जो भी अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हुई, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई, सो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो उसमें क्या होता है कि whenever you guide someone, you should not tell them कि भैया तुम्हें ये करना है। Always give them an option कि भैया अगर, because you are, come on, आप experienced हैं, आपने जिंदगी देखी है, आपने दुनिया देखी है, तो आपको मालूम है कि अगर आप इस रास्ते जाएंगे तो ऐसा होगा, इस रास्ते जाएंगे ऐसा होगा, इस रास्ते बहुत सारे चॉइसेस रहेंगे, बट यस डिसाइड करना है आप कौन से। एब्सोल्युटली। तो उस चीज में आपने क्या करना है कि टू ऑल द पेरेंट्स आउट देयर हु आर वाचिंग दिस, आप उनको डायरेक्टली डोंट इम्पोज योर डिसीजंस ऑन योर किड्स और चाइल्ड। आप उनको ये बताएं कि आपने अगर ये किया, जस्ट गिव देम फ्यू ऑप्शंस। अगर आपका बच्चा अगर ऑप्शंस में भी अगर कंफ्यूज हो जाता है, जस्ट शॉर्टलिस्ट देम एंड गिव देम एटलीस्ट 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस में क्या होगा, उसके बाद आपने ये भी समझाना है उन्हें कि आपने अगर ये किया सो दिस विल बी द आउटपुट, आपने ये किया सो दिस विल बी द आउटपुट, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल गो, एंड दिस इज हाउ योर लाइफ विल गो। आई मीन, कम ऑन, यू कैन नॉट लीव योर चिल्ड्रन आउट इन द ओपन मार्केट। दिस इज जंगल एंड दिस इज अ ह्यूज ओशन एज वेल। उनको पता नहीं रहता बच्चों को कि क्या करने से क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे बच्चा नहीं करेगा जो उसको करने का मन है। तो आप उनको 2 ऑप्शन देके आप उनसे पूछें कि आप ये 2 ऑप्शंस एनालाइज करें, डोंट टेक डिसीजन इन हेस्ट। और अब वो जब डिसाइड कर ले बच्चा, तब आप उनसे पूछें कि आपने ये डिसीजन क्यों बनाया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर एनालिटिकल स्किल्स, कि उन्होंने चीजों को कैसे एनालाइज किया है, बी इट लाइफ, बी इट कमर्शियल, बी इट एनीथिंग। सो दैट्स हाउ यू शुड। आजकल जो है मतलब नॉट ओनली लाइक यू नो मेडिकल इंजीनियर, बहुत सारे ऑप्शंस है करियर में, लाइक अपार्ट फ्रॉम दिस, बिकॉज नॉर्मली लोगों को क्या रहता है कि आइदर डॉक्टर, इंजीनियर और मार्केटिंग और बिजनेस वगैरह बहुत सारे रहेंगे। बट अभी के जो मतलब
ये तो करियर अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे फील्ड में आ जाते हैं। यस। तो उसके बारे में आप मतलब कुछ एडवाइस कर सकते हैं? आज की अगर देखें, आज के डेट में स्पेशली पोस्ट कोविड Yeah. हम देखें 2020 में यानी पैंडेमिक हुआ था, Then, तो ये आपकी जो सॉफ्टवेयर फील्ड जो है और स्पेशली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IT, और आईटी इंडस्ट्री, यस एज यू सेड, वो बहुत एडवांस हो गया। लोगों को पता चला है कि व्हाट कैन बी डन। पीपल आर स्टिल गोइंग टुवर्ड्स, लोगों का इंक्लिनेशन आज भी सॉफ्टवेयर साइड में जाता है, आईटी साइड में जाता है, इलेक्ट्रॉनिक साइड में जाता है। बट हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि अगर हम बोलते थे कुछ डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में कोर होते हैं, कोर डिसिप्लिन कहा जाता था उसे, जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये जो डिसिप्लिन होता है वो कोर, बिकॉज विदाउट दीज डिसिप्लिन नथिंग विल वर्क। आप कितना भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए, अगेन नथिंग ऑफेंसिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इन द मार्केट एंड which has already started. yes. तो बट एट द एंड ऑफ द डे यू नीड एन इंफ्रास्ट्रक्चर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ये तीन डिसिप्लिन ही देती है। जब आपका बेसिक अगर अच्छे हैं तो फिर उसके बाद तो मतलब आपके यहाँ पे यूएई में आप ऑलमोस्ट कितने 9 साल 9 साल हो गए। तो आपका जो मतलब ये स्टार्टेड कैसा हुआ, हाउ यू स्टार्टेड योर करियर हियर इन लाइक हाउ यू गॉट योर फर्स्ट जॉब हियर इन देयर एनीथिंग लाइक? इट वाज बैक इन 2015, मैं मलेशिया में था। अगर आप नजरों से दूर हो तो आप दिल से और दिमाग से दूर हो जाते हैं।